Hey, hi. In today's session, we will see the remaining three algorithms, that is shortest remaining time, round robin algorithm and priority scheduling algorithm. In previous session, we have already studied these two algorithms that you can see in this slide, that is FCFS, first come first serve, and the second one is shortest job first. By the way, academic calendar has been uploaded by MSBT on their site. You can go through that calendar so you will have an idea when the unit test as well as your semester exams will be held. So you will be better be prepared for everything. You can just go on MSBT site and search for academic calendar. There you will see all the schedule. Okay, so now we will see this remaining algorithm with example one by one. So as you can see here, the algorithm that we are going to study is shortest of remaining first algorithm. You can see here the table that I have noted down here, which has three columns, that is process burst time and arrival time. And as I have said earlier, that you have to draw a Gantt chart. As you can see here, the algorithm name implies shortest job remaining first. That means the process which has less burst time will be taken first for execution. But here one more column that has been given is the arrival time. सो यहाँ पे गैंट चार्ट में देखो अराइवल टाइम P1 प्रोसेस का 0 है. सो द प्रोसेस P1 whose arrival time is 0 will be have to taken first for execution. So here in the Gantt chart you can see the process P1 has been executed for 1 unit only because it has highest burst time. The lowest burst time is of P2, but the arrival time of P1 is 0, so there is a compulsion to take process P1 for execution. So I have taken process P1 that will be executed for 1 unit. So here in this Gantt chart you can see P1 has been executed for 1 unit, and after that whose burst time is low, that is P2. So P2 is executed for 2 units as its burst time is 2. So 1 plus 2 is equal to 3. So P2 ends at 3. After that, which process has lowest burst time? So after P2, P4 process has lowest burst time, that is 4 unit. So after P2, where P2 ends at 3. So 3 plus 4, that is 7. So P4 ends at 7. After that, there are two processes that are remaining, that is P1 and P3. So among that, we have taken P1, 1 unit of P1 has already been executed. So P1 has 5 units more, and lastly P3 has 8 units. So P1 burst time is 5 and P3 will be 8. So among that, P1 will be taken first for execution. So 7 plus 5 is equal to 12. So P1 ends at 12. See here in the diagram so you can understand it properly. After that, the last process that will be taken for execution is P3 because it has highest burst time. So 12 plus 8 is equal to 20. So here, according to the table given above, we have noted down the Gantt chart. Now we will see the waiting time of P1. So P1 has arrived at 0 minus 0. So waiting time of P1 is 0 and arrival time is also 0. So 0 minus 0 plus. Now when the P1 has begun further, it has begun at 7. So 7, and when the first P1 has ended, that is at 1. So 7 minus 1 is equal to 6. As I have told earlier in the session that the waiting time of each process differs when a table is given along with the burst time as well as arrival time.
सो वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 0, दैट इज P1 को वेट 0 यूनिट तक करना पड़ा, यहाँ पे डायग्राम देखिए, -0 उसका अराइवल टाइम, प्लस P1 कहाँ से स्टार्ट हुआ 7 और पहला P1 कहाँ पे एंड हुआ 1, सो +7 - 1 इज इक्वल टू 6. नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P2 कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से और उसका अराइवल टाइम कितना है माइनस. सो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला जब अराइवल टाइम आता है तो कैसे होता है, वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम. वेटिंग टाइम ऑफ एनी प्रोसेस चेंज हो, मतलब इसका फॉर्मूला चेंज होगा जब अराइवल टाइम भी टेबल में आपको दिया जाता है. सो वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज इक्वल टू वेटिंग टाइम, एक्चुअल वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो हियर यू कैन सी 1 - 1. हाउ 1 - 1, बिकॉज P2 को वेट करना पड़ा 1 यूनिट के लिए और उसका अराइवल टाइम है 1, सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0. नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P3 को कितना वेट करना पड़ा 12 यूनिट्स के लिए. यहाँ पे डायग्राम ध्यान से देखो, गैंट चार्ट. सो 12 - 2 क्या है, यहाँ पे ऊपर टेबल देखो, उसका अराइवल टाइम है 2, सो 12 - 2 इज इक्वल टू 10. फिर वेटिंग टाइम ऑफ P4 इज इक्वल टू, अभी P4 को कितना वेट करना पड़ा, गैंट चार्ट में देखो 3 यूनिट्स के लिए, और ऊपर P4 का अराइवल टाइम कितना है 3, सो 3 - 3 इज इक्वल टू 0. तो एवरेज वेटिंग टाइम आप कैसे निकालोगे, सबका वेटिंग टाइम लेके डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज देर आर 4 प्रोसेस, सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4. नाउ अगर आपको पूछा जाएगा कि टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. सो हमें हर एक का वेटिंग टाइम पता है अभी, जैसे कि हम लोग ने वेटिंग टाइम निकाला है ऊपर. तो बर्स्ट टाइम कितना है P1 का 6 प्लस यहाँ पे ऊपर देखो जो हम लोग ने वेटिंग टाइम P1 को कैलकुलेट किया है, 6 + 6 इज इक्वल टू 12. टर्न अराउंड टाइम इज ऑफ P2 इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. बर्स्ट टाइम कितना है P2 का 2, प्लस वेटिंग टाइम P2 का कितना है जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है, वो है 0. 2 + 0 इज इक्वल टू 2. देन अगेन टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3 इज इक्वल टू 8 + 10. 8 + 10 कैसे, क्योंकि P3 का बर्स्ट टाइम है 8 प्लस 10 जो है वो उसका है वेटिंग टाइम, सो 8 + 10 इज इक्वल टू 18. नाउ टर्न अराउंड टाइम ऑफ P4 का टर्न अराउंड टाइम कैसे देखोगे, बर्स्ट टाइम कितना है P4 का 4 प्लस वेटिंग टाइम जो हम लोग ने कैलकुलेट किया वो कितना है 0, सो 4 + 0 इज इक्वल टू 4. सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो हम लोग ने टर्न अराउंड टाइम हमने अभी देखे हैं उनको मिला के डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 प्रोसेस है इसलिए, सो इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9. सो ये है शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट अल्गोरिदम. बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखने हैं. अगर अराइवल टाइम आता है तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला चेंज होता है. वेटिंग टाइम का फॉर्मूला जब अराइवल टाइम टेबल में दिया जाता है तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हो जाता है. और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला याद रखो, बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. सो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखने हैं. Now the next algorithm that we are going to study is round robin scheduling algorithm. It is a bit complex, but if you listen carefully then it will be very easy for you. See, now here you have to look here the table that I have noted down, that is process and burst time. For each process the burst time is given, and here the specific mention in this round robin scheduling algorithm is the time quantum or time slice that will be given to you. So here the time quantum or time slice is 3. So according to that we are going to draw the Gantt chart. So as you can see that the process P1's burst time is 10, P2's burst time is 3, P3's burst time is 7, and P4's burst time is 5. So, and the time slice is 3. This time slice plays a very important role in round robin scheduling algorithm. So, according to the time slice, we are going to draw the Gantt chart. Now, see the Gantt chart over here. As the time quantum is 3, so P1 का burst time 10 है,
फिर भी हम लोग P1 को 3 यूनिट्स के लिए ही रन करेंगे, क्योंकि टाइम क्वांटम कितना दिया है, 3 दिया है, 3 यूनिट्स का ही दिया गया है। तो P1 में से 3 यूनिट हम लोग रन करेंगे और बच्चा कुछ 7 यूनिट बाद में रन करेंगे। सो P1 के बाद फिर से हमें लेना है P2। ये जो अल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन होगा वो सीक्वेंस वाइज होगा और अकॉर्डिंग टू टाइम स्लाइस होगा। सो P1 को हम लोग ने एग्जीक्यूशन किया 0 to 3, फिर उसके बाद हम लोग ने लिया P2 ऑलरेडी 3 ही बर्स्ट टाइम दिया गया है, तो P2 यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। सो P2 3 to 6, फिर P3 में से P3 का बर्स्ट टाइम है 7, सो P3 3 यूनिट के लिए रन होगा, दैट इज 6 to 9, उसमें से बचा 4, वो बाद में रन होगा। फिर P4 का कितना है 5, उसमें से 3 यूनिट के लिए रन होगा, 9 + 3 दैट इज़ 12, और उसमें से बचा कितना 2, वो बाद में रन होगा। अभी फिर से मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि आपको जो भी प्रोसेस है वो सीक्वेंस वाइज ही एग्जीक्यूशन होने वाला है इसमें। सो P1 P2 P3 P4 ये ख़त्म होने के बाद फिर से P1 से शुरू करना है। सो नाउ 3 यूनिट रन किया है, बचा है P1 में 7 यूनिट्स, तो 7 यूनिट में से फिर से 3 यूनिट हम लोग रन करेंगे, दैट इज़ 12। P1 का कितना आएगा 12 to 15। फिर P2 का 3 ही यूनिट बर्स्ट टाइम था, तो ऑलरेडी P2 ख़त्म हो चुका है। फिर बाद में आएगा P3 का हम लोग ने 3 यूनिट रन किया है, बचा कितना है 4, सो P3 रन होगा 15 to 18, उसमें बचा 1 यूनिट जो हम लोग बाद में रन करेंगे। फिर P4 का बचा है, पहले हम लोग ने 3 यूनिट रन किए, फिर P4 का बचा 2 यूनिट, तो 2 ही यूनिट हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइम स्लाइस भले ही 3 यूनिट का है, लेकिन P4 का बचा रिमेनिंग यूनिट कितना है 2 यूनिट, तो P4 का कंपलसरी 18 to 20 आएगा, क्योंकि उसका 2 ही यूनिट बचा है। सो आफ्टर P4 वी आर अगेन टेकिंग P1, सो P1 20 to 23। नाउ आफ्टर P1 इज एग्जीक्यूटेड वी विल गो फॉर P3, क्योंकि P3 कितना बचा है अभी 2 यूनिट, सो 23 to 24। फिर इसका P1 का कितना बचा, 1 ही यूनिट बचा, क्योंकि 3 बार हम लोग ने P1 को एग्जीक्यूट किया। देखो यहाँ पे गैंट चार्ट देखो, 1 2 3, तो 9 यूनिट्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी P1 का बचा कितना है 1 यूनिट, सो एंड में 1 ही यूनिट आएगा P1 का, दैट इज 24 to 25। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिक्वेंशली वी आर गोइंग टू नोट डाउन द प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम क्वांटम, और टाइम क्वांटम के हिसाब से या फिर टाइम स्लाइस के हिसाब से उनको हम लोग गैंट चार्ट में नोट करते जाएंगे। सो हियर द मेन क्रक्स इज दैट द अल्गोरिदम्स, राउंड रॉबिन अल्गोरिदम, मतलब एक बार आप लोग ने वो नोट डाउन किया गैंट चार्ट में, उसके बाद वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सो द वेटिंग टाइम ऑफ P1 कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी P1 को गैंट चार्ट देखना है और इधर देखना है, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना है। P1 को वेट करना पड़ा 0 के लिए, फिर P1 कहाँ से शुरू हुआ 12, सो 0 + 12 माइनस, अभी पहला P1 कहाँ पे एंड हुआ 3, यहाँ पे देखो गैंट चार्ट में। आप गैंट चार्ट देखो और मैं जो बोल रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। सो 3 प्लस, फिर P1 कहाँ से शुरू हुआ 20, 3 + 20, मतलब यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है ना, उसका एंडिंग और स्टार्टिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे देखना है, तो ही आपको वेटिंग टाइम अच्छे तरीके से एक्यूरेट वे से कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। सो वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे P1 शुरू हुआ, और दूसरा P1 कहाँ से शुरू हुआ 12, सो 0 + 12 माइनस P1 कहाँ ख़त्म हुआ पहला 3 + 20 कहाँ से शुरू हुआ फिर से 20 से, इसलिए -3 + 20, फिर -15 क्यों, दूसरा P1 कहाँ से ख़त्म हुआ 15, फिर बाद में P1 कहाँ से शुरू हुआ +24, ठीक है, पर उससे पहले P1 कहाँ से ख़त्म हुआ -23। देखो ये P1 जब आप लोग वेटिंग टाइम निकालते हो तो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब अभी फिर से मैं रिपीट करती हूँ,
P1 का वेटिंग टाइम 0, ये यहाँ 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 उसका वेटिंग टाइम है। पहला P1 को जब सर्विस मिला तो उसका वेटिंग टाइम 0 था, प्लस 12 यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि P1 फिर से कहाँ से शुरू है, तो 12 से शुरू है, तो 0 + 12 माइनस अभी जहाँ पे पहला P1 ख़त्म हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ है 3, फिर कहाँ से शुरू हुआ P1 3 + 20, इसलिए -3 + 20, फिर -15 मतलब उसके पहले प्रीवियस P1 कहाँ ख़त्म हुआ, -15 पे, मतलब 15 पे, सो -15 + 24 + 24 क्यों, क्योंकि P1 वहाँ से शुरू हुआ है। फिर जो पहला प्रीवियस P1 था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ, तो -23, तो ऐसे आएगा आपको 15। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P2 देखो, वेटिंग टाइम ऑफ P2 कहाँ पे 3 है, क्योंकि P2 का 3 ही यूनिट बर्स्ट टाइम था और उसका टाइम स्लाइस भी 3 है, तो P2 को सिर्फ 3 यूनिट के लिए ही वेट करना पड़ा, जैसे कि आप लोग गैंट चार्ट में देख सकते हो। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P3 देखो, P3 को वेट करना पड़ा 6, फिर P3 कहाँ से शुरू हुआ, +15, 6 + 15 माइनस क्यों, वो पहला जो P3 जिसका हम लोग ने वेटिंग टाइम लिया था वहाँ वो कहाँ पे ख़त्म हुआ, 9, हाँ, प्लस वो फिर से कहाँ से शुरू हुआ, +23, मतलब जहाँ से, मतलब हम लोग को एंड प्लस स्टार्ट ऐसे करके वो वेटिंग टाइम मिलेगा। -18 मतलब P3 का एंड किधर हुआ है फाइनली, -18 पे, सो 6 + 15 -9 + 23 -18 = 17। फिर वेटिंग टाइम ऑफ P4 देखो, P4 को वेट कितना करना पड़ा, 9, ठीक है। फिर P4 कहाँ से शुरू हुआ, 18, 9 + 18, पर पहला P4 कहाँ ख़त्म हुआ, 12, तो -12 = 15। ऐसे आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाय 4 इसलिए क्योंकि 4 प्रोसेस है, = आपको जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल स्लाइटली चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस के साथ बर्स्ट टाइम के साथ अराइवल टाइम आ चुका है, और यहाँ पे टाइम स्लाइस मैंने मेंशन किया है 2 यूनिट। सो ये जो बर्स्ट टाइम है हर एक प्रोसेस का वो 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो गैंट चार्ट है वो आपको वैसे ही नोट डाउन करने हैं। तो गैंट चार्ट अभी नोट डाउन करते समय यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी प्रोसेस जैसे मतलब आपको यहाँ पे अराइवल टाइम के हिसाब से अभी देखा तो P1 P2 P3 P4 सिक्वेंशली ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी, तो P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए लिया है, वो 2 यूनिट के लिए रन हो गया, क्यों, क्योंकि टाइम स्लाइस 2 यूनिट दिया है। सो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, वैसे ऐसे जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला नोट डाउन करने का, वैसे ही वो एक एक यूनिट आपको सिक्वेंशली ही रन करना है, जितना उनका बर्स्ट टाइम है उतना ही वो रन होगा और उतने टाइम के लिए ही रन करने हैं, ठीक है। तो अभी वेटिंग टाइम ऑफ P1 कैसे निकालोगे, अभी गैंट चार्ट ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी P1 को वेट करना पड़ा 0 के लिए, फिर P1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 6, 0 + 6, फिर जो P1 जिसका हम लोग ने वेटिंग टाइम 0 लिया था वो कहाँ एंड हुआ, -2, प्लस स्टार्ट कहाँ से हुआ, 14, ठीक है। मतलब शुरुआत और एंड ऐसे करके हम लोग को वो वेटिंग टाइम निकालना है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बोला है, 0 + 6 -2 कहाँ पे, क्योंकि P1 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, -2 के वहाँ पे, फिर P1 कहाँ से शुरू हो रहा है, +14, फिर -8 क्यों, जो पहला एंड का है उसका P1 का 8, + 22 P1 की शुरुआत, ठीक है। फिर -16 P1 का एंड, + 28 P1 की शुरुआत, -24 P1 का एंड, उसके बाद P1 किधर नहीं है, ठीक है, -24, ठीक है। यहाँ पे आप +30 नहीं करोगे क्योंकि 30 एंड है, वहाँ पे P1 बाद में आने नहीं वाला है, तो 30 को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेटिंग टाइम भी नहीं है P1 का, क्योंकि P1 यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग ने -24 किया। ऐसे आपको ये वेटिंग टाइम ऑफ P1 आएगा। वैसे ही वेटिंग टाइम ऑफ P2,
वेटिंग टाइम ऑफ P2 कितना है देखो 2 + 10, मतलब यहाँ कहाँ से शुरू हुआ है वो, मतलब वेट कितना करना पड़ा P2 को 2 + 10 कहाँ से शुरू हुआ प्लस, फिर से P2 कहाँ से शुरू हुआ 10 से, -4 मतलब P2 कहाँ पे ख़त्म हुआ -4 + 18 कहाँ से शुरू हुआ 18 से, तो +18, फिर कहाँ पे ख़त्म हुआ P2 12 पे -12 = 14 -1 किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है अराइवल टाइम। अभी जब अराइवल टाइम आता है तो जो वेटिंग टाइम आप कैलकुलेट करोगे उसमें से अराइवल टाइम को माइनस करोगे तो ही आपको वेटिंग टाइम आएगा। मतलब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला राउंड रॉबिन में वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब यहाँ पे मुझे वेटिंग टाइम मिला 14 -1 किया क्योंकि P2 का अराइवल टाइम है 1, सो मेरा वेटिंग टाइम ऑफ P2 हो जाता है 13। सेम वैसे ही आपको P3 और P4 का करना है और आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा। किसी को भी ये राउंड रॉबिन समझ में नहीं आया तो 2 बार वो गो थ्रू करो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वी आर गोइंग टू मीट ऑन अ गूगल मीट, so there we can discuss if you have any query related to round robin. As I have said, it is a bit complex, थोड़ा समझोगे तो आसान होगा। Okay, so now we will go with the further algorithm, that is the last algorithm, that is priority scheduling algorithm. Algorithm is priority scheduling algorithm. As you can see, I have noted down the table and it has 3 columns, that is process, burst time and priority. Here the priority plays an important role while solving this algorithm. So the Gantt chart is being drawn according to the priority. So here you can see the process P2 has first priority, so process P2 will be executed first. As you can see, P2 has burst time of 1 unit, so P2 Gantt chart देखो P2 कैसे नोट डाउन किया है 0 to 1. नेक्स्ट इज प्रोसेस P5 का सेकेंड प्रायोरिटी है, सो P5 इज 1 to 6 क्यों, क्योंकि P2 कहाँ पे ख़त्म हुआ है 1 और P5 का बर्स्ट टाइम कितना है 5, सो 1 + 5 = 6. नाउ आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे P1 और P3 दोनों को थर्ड प्रायोरिटी दिया गया है, लेकिन टेबल में पहला कौन सा प्रोसेस आता है तो P1 आता है, तो पहले P1 एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। भले ही P1 और P3 का प्रायोरिटी सेम है, लेकिन जो फर्स्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में आया है वही पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्स्ट टाइम. सो P1 6 + 10 दैट इज 16. सो P1 को 16 यूनिट की, मतलब P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 10. सो P5 किधर खत्म हुआ है 6 + 10 = 16, तो P1 खत्म हुआ 16 पे. नाउ उसका थर्ड प्रायोरिटी किसका है P3 का भी है, तो P3 को हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए लेंगे. 16 + 3 = 3, सॉरी 16 + 2 = 18. फिर बाद में P4 आएगा क्योंकि उसका लास्ट प्रायोरिटी है और P4 का बर्स्ट टाइम कितना है 1, सो 18 + 1 = 19. सो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी द गैंट चार्ट विल बी ड्रॉन. और फिर उसका एवरेज वेटिंग टाइम देखो, P1 का कितना है एवरेज वेटिंग टाइम 6, फिर P2 का कितना है 0 प्लस फिर P3 का कितना है 16, P4 का कितना है 18 + 1, P5 का कितना है 1 डिवाइडेड बाय 5. 5 डिवाइडेड बाय 5 इसलिए क्योंकि 5 प्रोसेसेस हैं, तो इसको डिवाइड करके हम लोग को मिलता है 8.2 यूनिट. सेकेंड एग्जाम्पल भी देखो सिमिलर ही है. यहाँ पे P1, P2, P3, P4 उनको प्रायोरिटी दिया गया है. अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी गैंट चार्ट हैज़ बीन नोटेड डाउन एज यू कैन सी हियर. पहले किसको प्रायोरिटी दिया है P4. P4 को कितना बर्स्ट टाइम है 0 to 2, तो इसलिए P4 को नोट डाउन किया है 0 to 2. फिर उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी है P2 को, फिर P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 3, सो 2 + 3 = 5. फिर P3 का नेक्स्ट प्रायोरिटी है और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 5, सो 5 + 5 = 10. फिर लास्ट में प्रायोरिटी किसका दिया गया है P1 का, सो 10 + 8 = 18. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी द गैंट चार्ट will be drawn and according to the Gantt chart you will get the average waiting time. So यहाँ पे मेन important
यही है कि आपको गैंट चार्ट प्रायोरिटी के हिसाब से बराबर निकालना है और उस गैंट चार्ट के हिसाब से ही वेटिंग टाइम आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. इसके सम्स आएंगे और बहुत स्कोरिंग है ये. तो ये जो भी है 5 एल्गोरिदम ऑप्शन में मत छोड़ना. Next topic is deadlock. As you can see in this slide, deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting another resource acquired by some other process. So ये deadlock का जो मैंने अभी definition बोला, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये डायग्राम ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है जो मैंने अभी कहा है. वो देखो यहाँ पे 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2. प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 को अलोकेट किए गए हैं रिसोर्स. प्रोसेस 1 को अलोकेट किया गया है रिसोर्स 1 और प्रोसेस 2 को अलोकेट किया गया है रिसोर्स 2. लेकिन प्रोसेस 1 डिमांड कर रहा है रिसोर्स 2 को और प्रोसेस 2 डिमांड कर रहा है रिसोर्स 1 को. तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो ये डायग्राम में, ये डेडलॉक सिचुएशन को डिपिक्ट करता है. सो ये बेटर समझने के लिए डेडलॉक को हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करना है. बैंक पर्सनल से मैंने बोला कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, बट दैट पर्सन सेज कि फर्स्ट डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट, देन वी विल ओपन अकाउंट. लेकिन मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं अकाउंट ओपन करवाती हूँ फिर मैं डिपॉजिट करूँगी जब मुझे चाहिए रहेगा तब. बट दैट लीड्स टू अ डेडलॉक. कैसे? तो वो क्या बोल रहा है कि आई विल पहले आप डिपॉजिट करो अमाउंट मिनिमम 10,000 और फिर आपका हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे. लेकिन मैं बोल रही हूँ कि पहले मैं अकाउंट ओपन करूँगी फिर डिपॉजिट करूँगी. सो हम लोग एक सोल्यूशन पे पहुँच नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से ये डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो रहा है. एग्जाम्पल, आप एक सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि एक नैरो रोड है और दोनों जो व्हीकल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और रोड बहुत छोटा है. तो ऐसे मामले में एक व्हीकल भी आगे नहीं जा पा रहा है, ना वो सामने वाला व्हीकल आगे जा पा रहा है, ना अपोजिट रास्ते का व्हीकल आगे जा पा रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में डेडलॉक होता है. किसी को तो पीछे जाना पड़ेगा तो ही ये जो डेडलॉक सिचुएशन है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है डेडलॉक कैन अराइज इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली. पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स one or more than one resource are non-shareable. Only one process can use at a time. मतलब क्या? Means whatever resource you are using, that resource should be used very exclusively. ऐसा ना हो कि उस रिसोर्स को एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं एक ही टाइम पे. एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं प्रिंटर का. एक प्रोसेस P1 है जो प्रिंटर को यूज़ कर रहा है और उसी टाइम प्रोसेस P2 को भी प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है और वो भी प्रिंट कमांड देता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 दोनों के पेजेस प्रिंटर साथ में प्रिंट कर रहा है. इसलिए ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ये बोलता है कि हर एक रिसोर्स सारे प्रोसेस यूज़ करने चाहिए बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, मीन्स 1 by 1 यूज़ करेंगे. फिर नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट 1 रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स. इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना वो मतलब डायग्राम बताता है. यानी यहाँ पे एक प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है और दूसरा रिसोर्स रिलीज होने की राह देख रहा है, पर प्रोसेस ने होल्ड किए गए रिसोर्स रिलीज नहीं कर, मतलब प्रोसेस ने जो होल्ड किया है रिसोर्स वो रिलीज नहीं हो पा रहा है और दूसरे रिसोर्स के यूज़ का वेट कर रहे हैं. तो जब तक उसका पूरा यूज़ ना हो जाए तब तक वो प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करेगा, मतलब होल्ड एंड वेट सिचुएशन हो जाएगा. नेक्स्ट है नो प्रीएम्पशन.
नो प्रीएम्पशन, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, अ रिसोर्स कैनॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीजेस द रिसोर्स। मतलब अगर एक प्रोसेस अगर एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है और उतने में अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो उसने वो रिसोर्स छोड़ना नहीं चाहिए जब तक उसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। इसको ही बोलते हैं नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब क्या, जैसे मैंने पहले सेशन में बोला है, प्रीएम्प्ट करना मतलब अगर एक प्रोसेस रन मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है और उतने में हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा, फिर वेटिंग स्टेट में से फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगा और रेडी स्टेट में से फिर से वो रनिंग क्यू में आएगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहली प्रायोरिटी मिलती है एग्जीक्यूशन की। तो ये जो नो प्रीएम्पशन है वो क्या बोलता है कि जब तक रिसोर्स का पूरा यूज़ ना हो पाए तब तक रिसोर्स को नहीं छोड़ो, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आए तो भी। फिर लास्ट है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, अ सेट ऑफ प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। अभी ये जो सर्कुलर वेट है मतलब अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम जो मैंने इस स्लाइड में देखा है, इसमें एक लूप कंप्लीट हो रहा है। देखो, प्रोसेस P2 डिमांड कर रहा है रिसोर्स 1 को, रिसोर्स 1 को पकड़ दिया गया है प्रोसेस 1 को, प्रोसेस 1 डिमांड कर रहा है रिसोर्स 2 को, रिसोर्स 2 को दिया गया है प्रोसेस P2 को। तो ये लूप है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो डेडलॉक हो सकता है। ये लूप मतलब सर्कुलर वेट ही है। ओके, सो दीज आर द 4 कंडीशंस जिसके वजह से डेडलॉक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज सिस्टम मॉडल। अ सिस्टम मॉडल और स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी सर्कुलेटेड अमंग सम अपोजिंग प्रोसेसेस। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, 4 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4. Each process has been allocated a resource, but they are demanding another resource which has been taken by another process. So, under the standard mode of operation, any process may use a resource in the below mentioned sequence. So, ये 3 जो main functions है, request, use and release, these functions play a very important role in a system model. As you can see here, the first function is request. When the request can't be approved, where the case may be when another process is utilizing the resource, then the requesting job must remain waited until it can obtain the resource. The second one is use. See here in the slide the points that I have noted down. The process can run on the resource, like when the resource is a printer, its job or process is to print on the printer. And the next is release. The process releases the resource, like terminating or exiting any specific process. So the thing is that in this system model we have to see these 3 important functions that play a very important role, that is request, use and release. As you can see here in this slide, I have noted down the difference between the deadlock prevention and deadlock avoidance. So deadlock prevention and deadlock avoidance are 2 different topics. I have noted down here the difference between the 2 topics here. So you just go through these points for better understanding. This difference can come in exam. So just go through each and every pointers that I have mentioned in both deadlock prevention and deadlock avoidance. Last topic is deadlock prevention. We can prevent deadlock by eliminating any of the above 4 conditions. जो 4 conditions हम लोग ने देखी हैं, that is mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. So how can we avoid these 4 conditions? We will just go through each condition and what will be the approach to avoid deadlock or to prevent deadlock, that we will see in this topic. So the first condition is mutual exclusion. Mutual exclusion क्या होता है कि जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, उतने में दूसरा प्रोसेस
उस रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है, एग्जाम्पल रिसोर्स 1 है, P1 प्रोसेस रिसोर्स 1 को यूज़ कर रहा है और उतने में P2 प्रोसेस को भी रिसोर्स 1 की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसे में डेडलॉक हो सकता है। तो ये सिचुएशन हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ये प्रिवेंट हो सकता है अगर हम लोग ने वो रिसोर्स 1 है उसको टाइम इंस्टेंस में अगर यूज़ करने को दिया हर एक प्रोसेस को, तो ये सिचुएशन अवॉइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3 ये रिसोर्स 1 यूज़ करना चाहते हैं और प्रोसेस P1 ने रिसोर्स 1 को होल्ड किया है, तो प्रोसेस P1 रिसोर्स 1 को होल्ड एक 20 मिली सेकेंड्स के लिए, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 20 मिली सेकेंड्स के लिए होल्ड करेगा। उसके नेक्स्ट 20 मिली सेकेंड्स प्रोसेस P2 होल्ड करेगा, उसके नेक्स्ट 20 मिली सेकेंड्स प्रोसेस P3 होल्ड करेगा। मतलब ये जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल नहीं रहेगा, उसे हम लोग शेयरेबल रिसोर्स करेंगे और हर एक प्रोसेस के लिए एक टाइम इंस्टेंस देंगे जिसमें हर एक प्रोसेस वो रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं और डेडलॉक सिचुएशन अवॉइड हो सकता है। फिर नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट बोलता है रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज इनिशियली, मतलब प्रोसेस को जितने भी रिसोर्स चाहिए प्रोसेस ने पहले ही वो रिसोर्स होल्ड करने चाहिए, तो ये डेडलॉक का सिचुएशन आएगा ही नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सारे रिसोर्स जो वो डिमांड कर रहा है वो फ्री होंगे ही नहीं, उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर नो प्रीएम्पशन मतलब टेक रिसोर्सेस अवे, मतलब अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस ने दूसरे रिसोर्स को होल्ड किया है और वो दूसरे प्रोसेस को डिमांड कर रहा है, तो ऐसे में नो प्रीएम्पशन मतलब जो प्रोसेस ने वो रिसोर्स को होल्ड किया है वो भी उसको रिलीज़ करना चाहिए। मतलब जब आप लोग एक प्रोसेस डिमांड कर रहा है रिसोर्स को, तो जो वो प्रोसेस डिमांड कर रहा है और तब उसने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, तो उसने जो होल्ड किया हुआ जो रिसोर्स है वो रिलीज़ करना चाहिए और फिर दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट करना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन को नो प्रीएम्पशन बोलते हैं और नो प्रीएम्पशन को हम लोग ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि जब आपको एक रिसोर्स चाहिए तो जो आपने रिसोर्स होल्ड किया है उसको तब रिलीज़ करना है ताकि दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ कर सके और आप दूसरा रिसोर्स यूज़ कर सके। फिर है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का अप्रोच है ऑर्डर रिसोर्सेस न्यूमेरिकली, मीन्स प्रोसेस सर्कुलर वेट का मैंने आपको अभी जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें बोला था कि लूप हो जाता है, लेकिन ये सर्कुलर वेट जो डेडलॉक सिचुएशन है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग रिसोर्सेस को न्यूमेरिकली यूज़ करें। तो मतलब अगर रिसोर्स है तो मतलब प्रोसेस P1, P2, P3, P4 है तो प्रोसेस P1 को पहले रिसोर्स देना है, प्रोसेस P2 को बाद में रिसोर्स देना है, मतलब ये न्यूमेरिकल ऑर्डर प्रोसेस को देना है ताकि 1 बाय 1 प्रोसेस वो रिसोर्स यूज़ कर सकता है। सो ऐसे ये जो 4 कंडीशंस है इनको ये अप्रोच देके हम लोग ये डेडलॉक का सिचुएशन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। So this marks the end of our 4th chapter. Go through all algorithms and all the topics, and if you have any query or doubt you can ask me on Google Meet. We are going to conduct the Google Meet on Tuesday and I will begin with the 5th chapter in the coming week as well. So till then, take care. Bye.